Manish Kumar Agarwal, Honorary Secretary. Welcome you all. For a brief introduction, Indian Society for Training and Development (ISTD) is a 50 years old organization plus 50 years. We have just celebrated our golden year jubilee last year. We are working with the more than 50 chapters almost at present and one virtual chapter, international chapter. We have more than 9,000 faculty members of ISTD. We run a very unique program for the training and development. For the last more than 40 years, we have 24,000 alumni there from different HR and training domain. We do this kind of sessions regularly, monthly. To detail about the program and what we do, I hand over the things to Dr. Gunmala, our chairperson. Thank you, ma'am. Thank you so much, Manish ji. You have briefly introduced about the ISTD. It's our monthly activity. We are looking for some speaker who has read different kind of books. No specific book is required, but उसकी ज्ञान शाला हमने नाम रखा है. All credit goes to सचिन जी. इन्होंने सोचा है हम जो बाकियों को ज्ञान है वो बाकी सबके साथ शेयर करें. So sharing of knowledge. जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उनको पढ़ा है हम लोगों ने आपस में मिलकर के और एक जना वॉलंटियर करता है कि हम उसके बारे में बात करेंगे और बाकी सबके मन में कोई भी शब्द क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई शंका होती है तो हम आपस में मिलकर के शेयर करते हैं और जो स्पीकर है वो उसके बारे में बताता है. तो दैट इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ इट. टुडेज स्पीकर इज डॉक्टर जयंती दत्ता. My affiliation to Dr. Jayanti is quite long. We both are from Punjab University. And she is the acting most of the time Director of Human Resource Center of the Punjab University. When she joined and I joined, she conducted an orientation program and I also joined that orientation program. I was so impressed with her. Her small things that teached me a lot. First of all, the thing I learned from her is she has explained the characteristic of a speaker in such a long and lengthy way. And she was well versed with the language. Although she is a PhD in her subject, many publications, that is the protocol of our university, everyone has to do it. And she's a versatile person. She has a ferocious reader, read a couple of books, and today she has thought about sharing a book of Gaura. So over to Sachinji. He will be taking over and asking the different questions and how she has thought of the book and how the journey of the book in his life, in her life, and other things. Now over to you, Sachinji, and he'll take Thank the you. question. Thank you and welcome all, especially Jayanti ma'am. फॉर्मेट गुनमाला मैम ने बताया है. इसका बेसिक आइडिया ही है कि हम एक किताब के बारे में चर्चा करें और यूजुअली पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत लोग सेशन के दौरान ही वो पर्टिकुलर किताब ऑर्डर भी कर देते हैं, उनको वो किताब इतना इंटरेस्टिंग लगता है. तो अभी जो सुधीर सर बात कर रहे थे कि यदि हम यंगस्टर्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके तो वो अचीवमेंट होगी. यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनी टीचर्स हैं जो कुछ जुड़े हुए हैं और हमारे फैकल्टी के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग. इसमें हम फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों डिस्कस करते हैं. और फिक्शन मुझे हमेशा लगता है कि जिसको हम फिक्शन कहते हैं वो दरअसल फिक्शन नहीं होता. मल्टीपल रियलिटीज को एक साथ आप अमेलगमेट कर देते हैं तो शायद उसी को हम फिक्शन कहते हैं. तो ये जो नॉवल मैम ने चुना है बड़ा एक ऐसा उपन्यास है जिसको मुझे लगता है मैंने बहुत पहले हिंदी में पढ़ी थी. मुझे पहला जो ख्याल उसमें आया था कि बड़ा महाकाव्यात्मक उपन्यास है, एपिक लाइक नॉवल मुझे ये लगा, और उसकी उतनी ही लेयर्स हैं. और आप पहले भी मैंने शायद इस मंच से बात कही है कि दरअसल किताबों में हम खुद को ही पढ़ते हैं और अपने ही आईने से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो किसी के लिए प्रेम कथा है, किसी के लिए हमारा सामाजिक यथार्थ 19वीं शताब्दी का, तो उसको अपने अपने तरीकों से लोग देखते हैं. तो मैंने मैम से ही रिक्वेस्ट किया है कि हमारे टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आप इसको काइंडली प्रेजेंट करें. सो मैम, ओवर टू यू. करीब हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम होगा, उसके बाद वी विल हैव 10 मिनट्स डिस्कशन. राइट, ओके, थैंक यू सो मच. और थैंक यू मेरे को आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए. गुनमाला जी तो अपनी कोलीग ही हैं
और सचिन जी से भी ऐसे कोइंसिडेंटली मुलाकात हो गई, और उसके बाद जब उन्होंने इसके बारे में बताया और मैंने 1-2 अटेंड भी किया, तो फिर मुझे लगा कि इसमें ये एक नॉवल है जिसके बारे में मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को, मैं जो भी कुछ पढ़ती हूँ मैं अपने सब फ्रेंड्स को और सिबलिंग्स को, जो भी मेरे से सुनना चाहते हैं उन सबको मैं बताती रहती हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड बुक और आप भी पढ़ो इसको और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा ही नॉवल है जिसके बारे में मुझे बहुत दिल करता है कि लोगों के साथ बात करूं, क्योंकि ये काफी एक तरह से लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग है, ये बहुत और ट्रांसेंडेंटल है। मतलब ये जब आप पढ़ते हैं ना तो इसमें से एक और ही चीज इसमें निकलती है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं आपको ये लेट मी प्रेजेंट यू, तो इसको जस्ट अ मोमेंट प्लीज, एक मिनट, स्लाइड शो, या ये नॉवल है जिसका नाम है गोरा, राइट। और गोरा मतलब ये हिंदी का ही वर्ड है, बांग्ला में भी इस तरह से यूज होता है। और गोरा हम सभी को पता है कि गोरा हम कहते हैं इज फेयर पर्सन जो होता है उसको हम गोरा कहते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल है, इसका 5th नॉवल है उनका, और ये सबसे लंबा नॉवल है। टोटल उन्होंने 12 नॉवल लिखे थे जिसमें से ये सबसे लंबा है, और 1909 में ये लिखा था उन्होंने जब उनकी उम्र 48 ईयर की थी। और ये 1883 के अराउंड, 80 मतलब 85 के अराउंड ये जो कहानी है ये लोकेटेड है टाइम में, ये 1880 के अराउंड लोकेटेड है और कैलकाटा में है ये इसका सेटिंग जो है। और उस टाइम 1880 से आप देख सकते हो कि 1857 के बाद से 1880 से लेके 1920, 1930, 1940 तक ये सारा ट्रांजिशन वाला टाइम है जिसमें इंडिया एक ऐसे ट्रांजिशनरी फेज से गुजर रहा है कि पिछली जो भी ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको कैसे मॉडर्निटी में सेट करना है, और मॉडर्न टाइम भी आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी या नई चीजें भी आ रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं, और हम अपनी पुरानी चीजों को उसके अंदर कैसे सेट करें उसका एक डिफाइनिंग मोमेंट है। और इंडिया हर चीज में इंडिया को चाहिए अपने हर चीज को डिफाइन करना पड़ रहा है, लाइक इन साइंस ऑल्सो अगर आप देख लें तो ये वो पीरियड है जिसमें साइंस को भी डिफाइन किया बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने, और हर एक को एक इंडिया को एक नए कॉन्टेक्स्ट में सेट करना है। तो ये वो टाइम है जो कि एक बहुत क्रूशियल पीरियड है हिस्ट्री का, और इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस भी है, एक चर्निंग है, एक मंथन जो है वो हमारे समाज में चल रहा है। अब इसमें स्टोरी लाइन जो है वो मैं थोड़ी आपको सुनाऊंगी, एक स्पॉइलर भी है जो मुझे देना पड़ेगा आपको क्योंकि हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप यू विल नॉट माइंड इट। तो गोरा इसमें हीरो है, और गोरा जो है वो बहुत गोरा है, और ही इज क्वाइट टॉल, वेरी वेल बिल्ट एंड वेरी हैंडसम लुकिंग, एंड ही इज क्वाइट जो बाकी उसके मतलब फेलोज हैं या बाकी जो समाज के लोग हैं वो दे आर डार्क एंड दे आर वेरी शॉर्ट एंड स्किनी टाइप पीपल। तो उन सब के बीच में ये जो वो कुछ अलग सा ही दिखता है, उसका फोरहेड एक चौड़ा ललाट है उसका, बहुत देखने में अच्छा है, सुंदर है वो, इसलिए उसका नाम गौर मोहन है। अल्टीमेट वैसे उसका नाम गौर मोहन है लेकिन सभी उसको एक निकनेम जो है गोरा कह के बुलाते हैं। उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है बिनॉय, और बिनॉय और गोरा बहुत ही पक्के दोस्त हैं, लेकिन बिनॉय जो है ही इज नॉट वेरी एस्पिरेशनल, गोरा में एक लीडरशिप क्वालिटी है, और बिनॉय उसका पक्का दोस्त है, वो उसका फॉलोअर है एक तरह से, और जो भी गोरा कहता है वो उससे काफी इम्प्रेस्ड रहता है। अब ये दोनों कॉलेज में मान लीजिए पढ़ चुके हैं, इनकी उम्र अराउंड 23-24 के अराउंड है दोनों लड़कों की उम्र, और ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। गोरा की मदर जो है उसका नाम आनंदमयी है, और गोरा के फादर जो है वो गोरा के मदर और फादर गोरा एक बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि बहुत ही हिंदू और रिचुअलिस्टिक, उसके फादर जो है बहुत ही रिचुअल्स मानते हैं, वो ब्राह्मण है और हिंदुइज्म में बहुत विश्वास रखते हैं, और बिल्कुल सुबह से उठ के नहाना धोना और हर चीज को, और छुआछूत को भी बहुत मानते हैं कि इसको नहीं छूना है उसको नहीं छूना है। और लेकिन उसकी मदर जो है आनंदमयी जो है वो एक अलग ही तरह की वुमन है, बिकॉज शी इज क्वाइट लिबरल इन हर आइडियाज। वो बाकी सब कुछ समाज में वो हर चीज करती है लेकिन वो इन छुआछूत वाली चीजों को नहीं मानती, और वो बार बार ये कहती रहती है कि ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमन मानवता है वो सबसे इससे बड़ी होती है, हर चीज धर्म से और छुआछूत से जात पात से हर चीज से बड़ी होती है। तो आनंदमयी जो है वो बिनॉय को भी अपने बेटे की तरह ही मानती है और बहुत ही उसको भी प्यार करती है।
अब ये एक फैमिली है और दूसरी तरफ एक फैमिली और है जिसमें परेश जी हैं जो कि एक ओल्ड मैन है और उनकी वाइफ का नाम वरदा सुंदरी है और उनकी दो लड़कियां हैं जिसमें उनकी फैमिली में 2 लड़कियां हैं जिसमें एक का नाम है सुचरिता और एक का नाम है ललिता। सुचरिता जो है वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, वो उनके एक दोस्त की बेटी है जिसकी जो मर चुके हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है अपनी बेटी की इनको सौंपी हुई है। तो सुचरिता और ललिता ये दोनों परेश जी और वरदा सुंदरी के घर में रहती हैं, उनकी डॉटर्स हैं। और परेश जी जो हैं और इनकी परेश की जो फैमिली है ये ब्राह्मो है। आई थिंक आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि ब्राह्मो समाज एक रिफॉर्मिस्ट आंदोलन था जिसमें हिंदुइज्म की बहुत सारी चीजों को वो क्रिश्चियनिटी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित था और ये 1880 के काल में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी जो हिंदुइज्म की बुराइयां थी या कुरीतियां थी उनको नहीं माना जाता था, जैसे कि आइडल वर्शिप जो है, पूजा पाठ करना, रिचुअल्स करना या छुआछूत मानना, इन सब चीजों से हट के ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण समाज एक तरह से ये एक बहुत ही ओपन और लिबरल टाइप का धर्म माना जाता था। लेकिन ब्राह्मण समाज के जो लोग थे ये अपनी लड़कियों को भी पढ़ाते लिखाते थे और कुरीतियों में विश्वास नहीं करते थे, उनकी जल्दी शादी नहीं करते थे, लड़कियां पर्दा नहीं करती थी, बाहर जाती थी और काफी कॉन्फिडेंट होती थी। तो हिंदू इन लोगों को बहुत बुरा मानते थे। तो हिंदुइज्म और ब्राह्मण में एक तरह से एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता था, आपस में शादियां भी नहीं करते थे और ब्राह्मण लोग भी जो थे वो भी हिंदुओं को बहुत बुरा मानते थे। वो कहते थे ये तो अंधविश्वास मानने वाले हैं और ये पुरातन नीतियों में और पुरातन काल की चीजों में विश्वास रखते हैं। तो ये इस कहानी में ये दोनों परिवारों की कहानी है। अब उसमें अलग अलग इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसमें जो बिनोय है ये इनके घर जाने शुरू करता है अपने परेश बाबूजी के, और वो ललिता से और सुचरिता से उसकी फ्रेंडशिप होने लगती है और फिर उसके बाद गोरा भी उधर धीरे धीरे जाने लगता है। तो ये लोग जब वहां जाने लगते हैं तो आपस में इनकी बातचीत होती है और इसमें बहुत सारे ऐसी डिस्कशंस हैं, एक्चुअली हर एक बैठक जैसी होती हैं। जब भी वो लोग आपस में जाते हैं तो उनकी आपस में बातचीत होती है और ये एक ड्राइंग रूम में बैठ के एक डिस्कशन है। और उस डिस्कशन में क्या चीज है, गोरा जो है वो भी पहले ब्राह्मण था, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हिंदू धर्म की बुराइयां करनी शुरू कर दी और बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म जब हिंदू धर्म का उन्होंने किया तो गोरा को लगा कि मुझे इसको डिफेंड करना चाहिए क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मुझे अपने देश को अगर मैं प्यार करता हूँ तो मुझे हिंदुइज्म का डिफेंड करना पड़ेगा। तो फिर वो वहां से बिल्कुल ही एक कट्टर हिंदू हो गया और कट्टर हिंदू होने के साथ साथ उसने रिचुअल्स भी मानने शुरू कर दिए और हर चीज को वो बहुत ही ज्यादा एक फैनेटिक वे में देखने अप्रोच करने लगा। जो भी उसके संस्कार होते हैं या धर्म के हर चीज को वो डिफेंड भी करता था। तो ये जो इनकी डिस्कशंस होती हैं इन सुचरिता, ललिता, बिनोय और गोरा की, और जिसमें परेश बाबू भी बीच में कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिस्कशंस लंबी लंबी डिस्कशंस हैं और किताब में ये ही बहुत देर तक ये चीजें डिस्कशंस होती रहती हैं। और डिस्कशन किसकी है कि हिंदुइज्म के जो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जाति प्रथा है या उसके अंदर भगवान का जो रूप है या मूर्ति पूजा है, उसको किस तरह से देखा जाए। तो सुचरिता और ललिता जो है ये प्रश्न पूछते करते हैं और बार बार उनको एक्सप्लेन करता है, फ्रेंडशिप होने लगती है और गोरा को भी सुचरिता जो है वो अच्छी लगती है और मैं तो हिंदू हूँ। तो उसके बाद वहां से वो एक लंबी यात्रा पे अपने देश को समझने के लिए वो कहता है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदुइज्म का प्रचार जो है वो सारी जगह जा जाके करना पड़ेगा। तो वो देश में निकल पड़ता है, अपने एक देशाटन के ऊपर बहुत ट्रैवल करता है। जब वो ट्रैवल करता है और गांव-गांव जाता है और बीच में जेल में भी जाना पड़ता है उसको, तो वो सब चीजें देखता है कि हिंदुइज्म का जो क्रूअल रूप है, वो चीजें उसकी आंखों के सामने आता है और उसके मन में भी प्रश्न उठते हैं कि ये शायद चीजें ठीक नहीं है, लेकिन वो उन प्रश्नों को दबा देता है क्योंकि वो कहता है कि नहीं, मुझे हिंदुइज्म ही करना है और ये रिचुअल जो है ये सब
जयंती मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से वहाँ सिग्नल पुअर है। अम, गुणमाला मैम आपको आ रही है आवाज? सचिन जी कॉल करके बात करें। हाँ हाँ, मेरे ख्याल आपकी से। तो आ रही है, लेकिन हाँ, जयंती मैम फ्रीज हो गई हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि मैम को यदि अपना वीडियो ऑफ कर दें तो शायद बेहतर होगा। मैं कॉल करता हूँ। हम्म। हाँ, ये मेरे ख्याल से मैम के सिग्नल में है इशू। मैं करता हूँ She कॉल। she has left the meeting. She'll be joining in a couple हाँ, of seconds. यस। आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। हाँ नो जी। इश्यूज मैम। मुझे लगता है मैम सिग्नल का इशू है, तो आप अपना वीडियो ऑफ रखें तो शायद उससे कोई फर्क पड़ेगा। राइट राइट, ओके, राइट। तो जब गोरा अपने पूरे देश से ट्रैवल करके वापस आता है और उसके पास उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है अपने देश में किस तरह से वो समाज सेवा करनी है, इन सब चीजों का, तो वापस आता है तो उसको पता लगता है कि बिनॉय और ललिता की शादी हो रही है। तो वो बिनॉय से बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण लोग हैं, हमें इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो बिनॉय उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता है और वो उसकी शादी, वो जाता नहीं है, गोरा उसकी शादी में अटेंड नहीं करता, लेकिन आनंदमयी उसकी शादी अटेंड करती है। और वो ये भी देखती है कि अगर सुचरिता के साथ गोरा की शादी हो जाए तो कितना ही अच्छा हो। लेकिन अब जो परेश बाबू हैं वो और उनके, परेश बाबू के और सुचरिता के भी बहुत सारे डायलॉग इसमें हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज का जो एस्पेक्ट है, उनके क्या विचार हैं धर्म के बारे में और किस तरह से वो धर्म में रिफॉर्म चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होती रहती है। और वरदा सुंदरी जो है, ये ब्राह्मण होने के बावजूद भी ये भी कट्टर ब्राह्मण है। अब इसमें ये दिखाया गया कि ब्राह्मण होने से ही सिर्फ आप एनलाइटन नहीं हो जाते। अब वरदा सुंदरी ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसके मन में एक कट्टरता है और वो बिल्कुल भी हिंदुओं को बहुत ही खराब देखती है, खराब तरह से देखती है, और वो कहती है कि अंधविश्वासी होते हैं और ये रूढ़िवादी होते हैं। और वो चाहती है कि एक कानू बाबू करके एक पर्सन है जो कि एक ब्राह्मण है, और वो चाहती है कि सुचरिता की शादी उसके साथ करा दी जाए। अब वो इस जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं कि इसकी शादी इसके साथ हो जाए, और उनकी शादी ऑलमोस्ट होने भी लगती है। और गोरा थोड़ा सा इस चीज से, वो एक तरह से उसको रोकने की कोशिश भी करता है जब उसको लगता है कि नहीं, उसको सुचरिता सुचरिता की तरफ जो वो अट्रैक्शन उसको समझ आता है अपने अंदर, तो वो उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और कुछ बोल नहीं पाता। जयंती मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जयंती मैम, सचिन जी एक बार इनको कॉल करके देखिए। जी। क्योंकि उसके मन में दो मन मतलब डायलेमा रहता है। वो डायलेमा ये है कि वो ब्राह्मण है और वो हिंदू है, और वो अपने हिंदू रिचुअलिस्टिक को माने कि उसके मन। हेलो हाँ, अब आई मैम आवाज। हेलो हाँ, अब आई मैम हेलो। आवाज। अब आ गई आवाज आपकी। बीच में हाँ चली जी, गई थी। हाँ हाँ, बस ये थोड़ा सा नेटवर्क बार बार ही खराब हो रहा है। हाँ जी। हम्म, जब उसके फादर उसको ये कहते हैं, गोरा को, कि आपने मेरा संस्कार नहीं करना है, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा संस्कार मेरा भाई करेगा, आप नहीं करोगे।
तो वो कहता है कि क्यों जो हिंदू धर्म में तो यही संस्कार होता है कि जो पिता का संस्कार है वो बेटा ही करता है, तो ये तो मेरा अधिकार है कि मैं आपका संस्कार करूं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और वो जो आनंदमयी है, जो उसकी माँ होती है, वो उसको ये कहती है कि 1857 में जब लड़ाई हो रही थी तो हम मेरठ में, तुम्हारे पिता और मैं, हम मेरठ में रहते थे। और मेरठ में हमारे जब लड़ाई का जब माहौल था तो हमारे घर में एक आयरिश वुमन आई थी, अंग्रेज थी, वो आयरिश वुमन थी, और वो आई और तुम उसके बेटे हो और वो मुझे तुम्हें सौंप के अपने आप मर गई। तो तुम्हारे फादर भी मर चुके थे और तुम्हारी आयरिश वुमन जो थी, तुम्हारी मदर थी, वो भी। और एकदम से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वो गोरा जो है वो इसीलिए गोरा था क्योंकि वो ही वाज द सन ऑफ एन इंग्लिश वुमन। और गोरा को अचानक से इस बात से ये इतना धक्का लगता है कि वो इतने सालों तक अपने आप को हिंदू मानता रहा और उस रिचुअल्स को फॉलो करता रहा, उनको जी जान से उसको फॉलो करने की कोशिश करता रहा, उसको जस्टिफाई करता रहा। लेकिन आज उसको ऐसा लगा कि वो सारी बेड़ियां जो हैं उसकी, वो खत्म हो चुकी हैं और वो टूट चुकी है। उसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको बांध सकता था। तो वो इन चीजों से एक तरह से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। और उसके बाद वो वापस जाता है और सुचरिता को ये कहता है कि आई हैव नो आइडेंटिटी नाउ, मेरी अब कुछ भी आइडेंटिटी नहीं रही, कोई मेरा रिलीजन नहीं रहा, कोई मेरा धर्म नहीं रहा, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपकी पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूँ और चलो तुम मेरे साथ और हम ट्रूथ की खोज में, लेट अस गो टू द इन द परसूट ऑफ ट्रूथ। सो दिस इज द होल स्टोरी लाइन। एंड इन दिस स्टोरी जो आई वुड जस्ट टेल यू, ये मूवी जो थी, ये बुक जो थी, ये 1920 में ही इसका ट्रांसलेशन हो चुका था, 24 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया था। और इसके जो डिफरेंट मोटिव्स हैं, राइट, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू। हाँ जी, इसमें एक जो एक्सटर्नल एजेंसी का मीनिंगलेसनेस है, जो रिलीजन या कोई भी चीज है उसके अंदर एक मीनिंगलेसनेस है। अलग अलग तरह की थीम्स इसमें उठाई गई हैं, जैसे लिबरेशन है, यूनिवर्सलिज्म है, ब्रदरहुड है, इसमें फेमिनिज्म है। ये जो इनमें वुमन कैरेक्टर दिखाए गए हैं सारे के सारे इस नॉवल में, वो सभी वुमन कैरेक्टर जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इंटेलिजेंट हैं, दे आर कल्चर्ड और वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, बट दे डोंट लूज देयर फेमिनिननेस। ऐसा नहीं है कि वो एक मैस्कुलिन उसमें जा रहे हैं, दे रिटेन देयर फेमिनिननेस ऑल्सो, और उसके साथ ही वो अपने हर तरह के एक इंटेलिजेंस भी झलकती है सभी में से, सुचरिता का, आनंदमयी का और इवन ललिता का। और इसके अंदर कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो दिखाए गए, हर तरह के रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल फादर डॉटर, जैसे परेश का और उसके साथ उसकी बेटियों का, सुचरिता और ललिता का, जो एक बड़ा मैच्योर फादर डॉटर रिलेशनशिप है, जिसमें वो डिस्कशन करती हैं अपने फादर के साथ, हर तरह की चीजें वो फादर के साथ डिस्कस कर रही हैं। उसी तरह से मदर एंड सन का, जो आनंदमयी का है और उसके बेटों का रिलेशन उसके साथ है। गोरा और बिनॉय का फ्रेंड्स का रिलेशन, लवर्स का रिलेशन है। देन अगेन रिलेशन विद द रूलर एंड ब्रिटिश का, इंपीरियलिज्म का और उसके साथ जो प्रजा है उनकी उसके साथ, एंड देन समाज का और उसके साथ जो इंडिविजुअल का है। ये सारे रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो लेयर्स हैं, वो सारी की सारी इसमें झलकती है। रिलीजन, जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदुइज्म वर्सेस ब्राह्मो इन्होंने जो दिखाया है इसमें, उसमें हिंदुइज्म, उसमें ये दिखाया गया है कि फैनेटिक कोई भी किसी में हो सकता है। ब्राह्मो समाज इसलिए आया था कि वो हिंदुइज्म का रिफॉर्मिस्ट रूप था, लेकिन ब्राह्मो भी जब रिजिड हो जाते हैं तो वो भी फैनेटिक से कम नहीं होते। तो इसमें ये दिखाया गया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स और लव फॉर ह्यूमैनिटी जो है रिलीजन का मेन क्रक्स यही है। रिचुअल्स के ऊपर जो लोग एम्फेसिस करते हैं, चाहे वो ब्राह्मो के रिचुअल्स हो, चाहे वो हिंदुइज्म के रिचुअल्स हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सभी रिलीजन का जो मेन पॉइंट है वो सब सेम ही है। और जो लोग ये रिचुअल्स करते हैं उनके अंदर एक सुपीरियोरिटी भी आ जाती है, वो एक एरोगेंट हो जाते हैं कि हम ये रिचुअल्स करते हैं इसलिए हम ज्यादा अच्छे हैं, लोगों से ज्यादा सुपीरियर है, वो वाली चीज भी आ जाती है। लेकिन रिलीजन जो है वो, उसका पॉइंट ये है कि उसको आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। और ये एक कोट है जो मैंने आपके सामने रखा है, आप पढ़ सकते हैं इस कोट को, जो लेट मी रीड इट। In this country of ours, you need not honor God, but if you don't honor all the rules about the months of Bhadra, Ashwin and Kartik, and about Thursday and Saturdays,
and all the special phases of the moon, you will not be allowed in the house. And I must confess that though I say I don't accept all this, in practice, if I don't go by the calendar, I feel uncomfortable. Our atmosphere breeds fear, just as it breeds malaria. So I can't shake off that kind of feeling. So these rituals, they are so much inbuilt into us. वो इतने ज़्यादा penetrating हो जाते हैं हमारे अंदर कि हमारी एक habit ही बन जाती है उनको follow करने की. उसमें से किस तरह से हम निकल सकते हैं. Then we talk about the nation also कि nation का patriotism होता क्या है. Patriotism क्या ये मानना है कि अगर हम हिंदू धर्म को मानेंगे तो हम ज़्यादा nationalistic हैं, या किस तरह का patriotism क्या होता है, nationalism क्या होता है, और उससे भी बढ़ के universalism क्या होता है. क्योंकि इसमें टैगोर का भी एक बहुत ज़्यादा इसमें डायलेमा है उसके नॉवेल्स में या उसके अपनी लाइफ में भी, कि वो नेशनलिस्ट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उसने एम्फेसिस नहीं दिया. यहाँ तक कि महात्मा गांधी के साथ भी उसके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और वो ये कहता था कि जो यूनिवर्सल चीज़ है या जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बीइंग पैट्रियोटिक. अपने नेशन भी एक तरह की एक बाउंड्री है और हमें उस बाउंड्री से भी आगे जाना है. प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू कि वुमन को बहुत ही ज़्यादा इसमें एक रोल इसका बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और दे आर शोन एज लिबरेटेड एंड थिंकिंग पर्सन्स, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स दैट वी सी इन दैट एरा. अगर आप बंकिम चंद्र के नॉवल पढ़ते हैं या शरद चंद्र के पढ़ते हैं तो आप में उसमें वुमन जो है ना वो ज़्यादा एक सफरिंग करती हुई हमेशा निरूपा राय टाइप की वुमन दिखाई जाती है. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वुमन जो है वो अपने सोच भी रही है, वो आर्ग्यू भी कर रही है, वो पॉइंट्स भी रख रही है, वो डिफेंड करती है अपने पॉइंट्स को. तो एक जो हम आइडिया उसके अंदर एक नई तरह की वुमन का देख पाते हैं. और ये जो 2 कोट्स मैंने रेड में लिखे हैं, दीज आर इफ वी कुड व्यू आवर वुमन outside domestic work, we could see Bharat only as consisting of men. We don't see the woman at all. So these are the quotes of Gora. Ultimately, he understands that women should also come in the fore and participate in all the activities. Then ये एक courage के बारे में भी है. Compliance जो है, जैसे हमें this is a quote which says that the opposite of courage is not cowardice, it is actually compliance. So when in religion is also a kind of it asks compliance from you. ये हमें religion हमें ये कहता है कि बस तुमने आंखें बंद करो और जो मैं कहता हूँ वो सुनो. आपको इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछना है, कुछ आप बोल नहीं सकते इसके खिलाफ, या कुछ आप you can't ask, you can't doubt. तो ये जो फेथ है जिसको हम कहते हैं कि विश्वास है, वो विश्वास आंखें बंद करके ही होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, कंप्लायंस करनी होती है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग अगेन इसमें इस बात के ऊपर जो जोर दिया गया है. देन दीज आर सबलाइम लव स्टोरीज. ये जो दोनों लव स्टोरीज हैं, चाहे वो बिनॉय और ललिता की है या वो गोरा और सुचरिता की है, these develop very beautifully. How the two people, they understand each other, they pine for each other, their angst that is there. ये बहुत ही beautifully और बहुत subtle way में portray किया गया. It's very implicit. It's not on your face, not direct, but it is very layered and nuanced, which adds much sensitive and makes it very sensitive. ये इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर ब्यूटी जो है. मुझे ये इसलिए अच्छी लगती है किताब क्योंकि ये एक बहुत प्रोफाउंडली इंडियन बुक है. इसका कॉन्टेक्स्ट भी इंडियन है, इसके कैरेक्टर्स भी इंडियन है, इसका सारा सेटिंग भी इंडियन है, और सब तरह के जो डिस्कशंस हैं वो सब बहुत इंडिजिनस और इंडियन एंगल्स हैं इसके अंदर. आइडेंटिटी का इशू जो मान लीजिए इट्स ऑलवेज न्यू. आज भी आइडेंटिटी के इश्यूज बहुत ही प्रेवलेंट हैं और बहुत ही हमारे लिए वो क्वेश्चंस हमेशा ही रहते हैं. ये स्टोरी इसकी बहुत ही बढ़िया और इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं. एक इमोशंस भी हैं इसके अंदर, अप एंड डाउन है, और पाठक जो है वो साथ साथ उसके चलता जाता है. इसके कैरेक्टर्स बड़े मेमोरेबल हैं, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कई जगह पे कैरेक्टर्स सिर्फ 2D मतलब प्लेन कैरेक्टर्स होते हैं. इसमें फुल लिविंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब आप उनको वो कटआउट्स नहीं है, वो सच में ही ऐसे लगता है कि ये लोग अगर आप इसको पढ़ते हैं ना बुक को, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इनके घर में जाके आई हूँ. That I have seen these people from close quarters.
ये आपको सोचने के ऊपर बाध्य करती है। और जैसे मैंने कहा कि एक ट्रांसेंडेंटल है, ये आपको थोड़ा ऊपर भी उठाती है। जो हमारे मंडेन चीज़ें हैं उनसे ऊपर उठा के ये हमारे को क्वेश्चंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली रिलीजन, और उससे ऊपर जो भी चीज़ें हैं उन सारों के बारे में सोचने पे बाध्य करती है। और ये आपने सुना होगा कि ईथोस, पैथोस और लोगोस, ये तीनों चीज़ें किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत इम्प्रेसिव होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि रविंद्रनाथ ने इसमें सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। सो इसके ऊपर एक सीरियल बना है, ये है 26 एपिसोड्स का सीरियल है, जो कि दूरदर्शन पे आया था, और गार्गी सेन करके हैं डायरेक्टर है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। और इसमें उससे मैंने ये लिए हैं, जिसमें ये दिस इज गोरा और ये सुचरिता का रोल इन्होंने निभाया है, एंड दिस इज आनंदमयी और ये गोरा के फादर का रोल है, एंड देन वी हैव ललिता एंड बिनॉय, एंड देन so this is the take home. I was also asked to have some kind of a take home for action. मुझे ये लगता है कि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें as or maybe for training what can we take from it, when we lead our lives, even in common everyday lives, there are three things that we have to we come across. So these things are facts, opinions and assumptions. जो facts होते हैं वो तो दे आर नॉट कंटेस्टेबल, उनको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए और उनको आर्ग्यूमेंट होता भी नहीं उसके ऊपर कुछ भी। तो जो ओपिनियंस होते हैं वो भी उसके ऊपर भी आर्ग्यू नहीं हो सकता, क्योंकि ओपिनियंस सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ एजम्पशंस होती हैं हमारी लाइफ में, वो हम चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। वो जो एजम्पशंस हैं वो ही हमारे को हमारे जिस तरह से हम कंडक्ट करते हैं वो हम एजम्पशंस के ऊपर करते हैं। एजम्पशंस जो होते हैं ये दीज आर नॉट these are man-made things. Most of the things are man-made. जैसे नेचर में जो चीजें होती है मोस्टली वो फैक्ट्स होती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ गोज राउंड द सन, सो वी कैन नॉट चेंज दैट, वी हैव टू टेक इट, इट्स अ फैक्ट एंड इट इज समथिंग विच इज नेचुरल। बट देन देर आर इंस्टीट्यूशंस, देन देर आर थिंग्स विच वी हैव मेड। वो सब जो मैन मेड चीजें हैं वो मॉडिफाइएबल है और वो उनको चेंज कर सकते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, मॉडिफाई भी हो सकती है, वो पूरी की पूरी तरह से टूट भी सकती हैं। सो ये वाली चीज़ हमारे को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आती है कि रिलीजन इज समथिंग विच इज अ वेरी इट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिजिड, और उसके वो टूट भी सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है। ये कुछ ऐसा, जब हम ये कहते हैं कि धर्म में तो ये लकीर है और ये लकीर से बाहर आप नहीं जा सकते, ये पत्थर की लकीर बनी हुई है, तो ये एक गलत बात है। और ये हमारे को उस में से निकलने की आज़ादी देती है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको इसकी आदत डाल देती है, नॉन थिंकिंग हैबिट्स हमारे अंदर वो डालती है। Because that is what religion is. आपको जो भी बताया जाए you cannot question. So if you cannot question in, आपको इसकी आदत पड़ जाए that you will not question, then you will not question otherwise also. तो इसमें से ये चीज़ आई थिंक लेने वाली है, और इसमें ये भी बात समझ आती है कि कोर और फ्लफ दो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, राइट। फ्लफ इज द ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स दैट वी हैव, आइडेंटिटीज हैं हमारी, हम जिस व्हाट आर वी, जिसको हम मानते हैं कि ये हम हैं, लेकिन वो हम नहीं होते। वो उस व्हाट इज कोर एंड व्हाट इज फ्लफ, आई थिंक वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और इन दोनों में से जब हम इन चीज़ों को डिस्टिंक्शन करना समझ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल गोरा को भी ये लगता था शायद कि रिलीजन उसका कोर है, but it was only a fluff, it was only external, and with one stroke he understands that what is his core, कि ये जो रिलीजन सब कुछ था, ये जो रिचुअल्स थे, ये सब कुछ, ये एक ओढ़ी हुई चीज थी जो कि उसके बाहर वो खुल गई और निकल गई, लेकिन उसका जो कोर था, वो जो ह्यूमन कोर, जो ह्यूमनिज्म की तरफ था, वो कोर ही हमारा असली है। सो दैट इज ऑल आई थिंक दैट आई हैव टू से। वी हैव एनफ टाइम फॉर डिस्कशन एंड आई नाउ yes, we can open it for discussion. Yes, thank you so much. Thank you ma'am. I guess इतने कॉम्प्लिकेटेड नॉवेल को आपने बहुत ही लिमिटेड टाइम में प्रेजेंट किया, और आई एम श्योर कि जो हमारे जो लिसनर्स एंड स्पेक्टेटर्स हैं उनको एक आइडिया लगा होगा इस नॉवल के बारे में, और कई लोग प्रेरित भी होंगे। एक्चुअली यही ब्यूटी है कि जो नॉवल की भी ब्यूटी है, और ख़ास करके जो कालजयी रचनाएं होती हैं, काल के ऊपर होती हैं, क्योंकि जो
कॉन्फ्लिक्ट हैं ह्यूमैनिटी के, वो कहीं ना कहीं सनातन है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो चिंताएं, जो समस्याएं टैगोर ने उस समय अपनी पुस्तक में रेखांकित की हैं, वही चिंताएं कहीं ना कहीं आज के समाज की भी हैं, जैसा आपने बीच बीच में इसको हाईलाइट किया। जो नेशनलिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोर और फ्लफ की जो आप बात कर रही हैं, जो एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज हैं, अल्टीमेटली वो जो फ्लफ है बेसिकली हमको लगता है कि वही कोर है। तो उस तरह की जो चीज़ें आपने इसमें हाईलाइट की हैं, मेरे ख्याल से हमारे लिसनर्स को इसमें और इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ होगा। और मतलब मैं कहीं फिक्शन के बारे में पढ़ रहा था कि अल्टीमेटली फिक्शन की ब्यूटी है कि हमारी लाइफ इतनी लिमिटेड है कि सारे एक्सपीरियंसेस हम उसमें नहीं ले सकते हैं। सो नॉवेल बेसिकली गिव्स यू दोज कॉन्फ्लिक्ट्स जो जो शायद हम झेल ही नहीं सकते हैं, हमें हमारी जो पहुंच है बहुत लिमिटेड है। तो आप एक उपन्यास में जब उतरते हैं तो वो सारे जीवन के कॉन्फ्लिक्ट एक बार जी लेते हैं। आप ये भी कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके घर में हूँ। तो ये टैगोर का जो एक मल्टीफेसेटेड टैलेंट था, एक्चुअली यदि वो पेंटिंग भी कर रहे होते थे तो पोइट्री होती थी उसमें, नॉवेल भी लिख रहे होते तो उसमें पेंटिंग भी होती थी और पोइट्री भी होती थी। तो वो चीजें इतनी जीवंत हो जाती हैं उनके लेखन में। हालांकि वो पोएट के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं और गद्यकार के रूप में, प्रोज राइटर के रूप में उनकी वो ख्याति नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि बहुत ही पावरफुल और बड़ी पोएटिक और बड़ी लेयर्ड उनकी जो है वो प्रोज जो है वो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। नाउ द फ्लोर इज ओपन। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट हो तो यू कैन आस्क, या आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग हो, कोई लेसन हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी आफ्टर थॉट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। एनीवन? ओके, जब तक बाकी हमारे श्रोता और दर्शक सोच रहे हैं, एक दो प्रश्न मेरे मन में थे मैम। जैसे एक चीज जो आपने कोट शेयर किया जिसमें बात हो रही थी कि मैं गॉड में मानूं या ना मानूं, लेकिन जो सावन भादो के जो रिचुअल्स हैं, यदि मैं ना मानूं तो कुछ अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। तो वो जो कल्चरल प्रिपेयर्डनेस वाला जो एस्पेक्ट है, उस सेंस में आप अभी के संदर्भों में यदि आप उसको देखते हैं तो क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनको भी चीजें अनकंफर्टेबल लगती हैं। लॉजिक के स्तर पे, लोगोस के लेवल पे शायद वो चीजों से कन्विंस नहीं होते हैं, बट कल्चर का जो कहीं ना कहीं एक प्रिपेयर्डनेस है उनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। और आपको लगता है कि इस तरह के नॉवेल्स में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुए हैं वो हमारे लोगों को कुछ आइडियाज दे सकते हैं रियल लाइफ में? आई थिंक ये यंग लोगों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट नॉवल है, क्योंकि इसमें हिंदुइज्म के जो भी क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें भी अच्छा नहीं लगता और हमें शक रहता है कि इसका क्या जवाब हो सकता है, उसको दोनों तरफ से देखा गया है। मतलब एक तरफ पहले तो गोरा उसको एक्सप्लेन करता है, उसको डिफेंड करता है, और बाद में उसको फिर वो निगेट करता है। तो वो दोनों ही चीजें इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे को है, जो रिचुअल, जो नॉन थिंकिंग रिचुअल्स होते हैं, एक्चुअली आई थिंक देयर इज अ नीड कि हम रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा खुल के बात करें, क्लासरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में, और पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। ये बहुत, क्योंकि हम रिलीजन को जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, और इवन यंग लोग भी उसको, मतलब क्योंकि वही बात है कि कंप्लायंस है तो मानना उनको भी पड़ता है, तो इसीलिए वो फिर एक नॉन थिंकिंग सोसाइटी जो है हमारी वो बनती रहती है, बन जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जरूर उसमें उनको ये नॉवल जो है इट्स अवेलेबल ऑन द पेपर बैक, तो ये 250 रुपए में ही मिल जा रहा है, और हार्ड कॉपी जो है वो 660 रुपीज का है। एंड इवन इसके जो ये सीरियल तो डीडी पे आई थिंक अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वो मिल जाएगा। सो और इसके मलयालम वर्जन भी है, हिंदी वर्जन तो है ही है, तो बहुत तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और पढ़ना चाहिए। देख रहा था मैम, कई ओल्ड एडिशन तो 60 रुपए 80 रुपए में भी अवेलेबल है, में मिल जाएगा, वो ले हाँ सकते जी। हैं। और एक बात है, गुड रीड्स में भी मैंने इसका देखा था कि क्या रैंकिंग है, तो उसमें इन्होंने इसको 4.26 आउट ऑफ 5 रैंकिंग दिया हुआ है। एंड इवन उसमें जो कमेंट्स हैं गुड रीड में, जो बहुत
सारे फॉरेन लोगों ने इसको पढ़ा है, मतलब अदर कंट्री, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज हैव रेड इट एंड दे हैव पुट देयर कमेंट्स, और वो ये कहते हैं कि वेस्टर्नर्स को इसको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी इंडियन जो सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। तो उनको भी अच्छा लगा, बहुत सारे मतलब इस तरह के लोगों के कमेंट्स इसके अंदर आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं। इवन यंग लोगों का भी मैंने देखा कि देयर आर ग्रुप्स इन विच देयर आर डिस्कशंस, तो ये अच्छा लग रहा है नए लोगों को भी, और मुझे ये लगता है कि सबको अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इसकी कहानी जो है वो बहुत ही एक एक्साइटिंग तरीके से और एक सीरियलाइज्ड वे में, जैसे आजकल हमें सीरियल देखने का चाव होता है, तो सीरियल में क्या होता है कि एक चीज पे छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन वहीं से वो एक एक्साइटिंग चीज पे उठाते हैं, तो दैट इज हियर। मुझे लगता है मैम दो चीजें जो आपकी बात, राजीव सर आपका माइक ऑन है शायद, थैंक यू। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट की। एक तो ये आइडिया कि हर पक्ष का एक विपक्ष होता है और वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम सबको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। मेरा पक्ष ही इकलौता पक्ष है। अधिकतर जो कॉन्फ्लिक्ट है सामाजिक जीवन में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी, उसके मूल में कहीं ना कहीं है जब हमको लगता है मेरा ही पक्ष जो है वो इकलौता पक्ष है, दूसरा पक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो आपने वाद विवाद की बात कही है कि उसमें दोनों पक्ष दिखाए गए हैं, हर चीज के दोनों पक्ष दिखाए गए हैं, और ये अल्टीमेटली पाठक पर है कि उसको कौन सा पक्ष अपील करता है, और बल्कि दूसरे पक्ष का भी जो मेरिट है वो भी उसको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है, और जो भी मेरे ख्याल से जो देश काल के परे जितना भी साहित्य है उन सब की कॉमन ब्यूटी यही है कि वो मैसेजेस यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट करते हैं और यूनिवर्सल मैसेजेस कहीं ना कहीं वो हमें देते हैं। और कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहे? कोई क्वेश्चन? कोई? जी जी जब तक मैम। बाकी लोग सोच रहे हैं, जी मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। श्योर। मैडम, आपने जो बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा और फिर वो हर पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में बात करते हैं, जो हमारे को हर एक को जो भी पढ़ रहा है या जिसने सुना है वो ये हमें कहता है कि हर चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। आप आंखें बंद करके कोई चीज को एक्सेप्ट मत करो और आंखें बंद करके कोई भी चीज को नेगेट मत करो। सो हो सकता है कोई चीज ऐसी है जो दूसरा देख रहा है और कोई चीज ऐसी है जो आप देख रहे हैं, so we can agree to disagree. That part should be taken care. Everybody should think like a critical thinker, or this novel helps everyone to think like a critical thinker. हमारे को जो हमारे पेरेंट्स ने या जो अब तक बता दिया है उसको हम मान करके चलते हैं और हमें मान के चलना चाहिए, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। चलना चाहिए या चलते हैं, तो क्या उसमें कुछ ठीक बात है या कुछ उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम विच आई थिंक इज लर्नेबल बाय एवरी इंडिविजुअल। कई चीजों को हम ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन मानिए जरूर, लेकिन उसके पीछे के क्वेश्चंस के ऊपर भी मंथन करें। वो है इम्पोर्टेंट लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने का। And that is what the author wants everyone should think over. Yes, I think हाँ बिल्कुल आपने ठीक क्योंकि इसमें जो रिलीजन जयंती मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, राइट। सो उनसे है जैसे कि हमारे को बहुत सारी चीजें जो है वो बताई जाती है और ये कहा जाता है कि ये बस ऐसे ही करनी है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा पूछता है, और एक सेकंड जी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ श्योर। हेलो, हाँ अब ठीक है मैम। हाँ जी। तो यस तो ये कि ट्यूसडे को ये क्यों नहीं करना है या थर्सडे को ये क्यों नहीं करना है, तो उसने वो मतलब पेरेंट मेरे को जो थी मदर, वो मुझे पूछ रही थी कि इनको मैं किस तरह से इसको बताऊं कि ये क्यों नहीं करना है। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि क्यों आप कहते हो कि इस दिन व्रत रखना होता है या इस दिन आपको नॉन वेज नहीं खाना है। तो उसने कहा वो इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल सिखाता है, आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है जब हम व्रत रखते हैं। तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छा है, बट आप ये मुझे बताइए कि ट्यूसडे को ही क्यों करना है और थर्सडे को ही क्यों करना है, किसी और दिन क्यों नहीं करना। तो उसके पास उसका कोई आंसर नहीं था।
तो वो अब वही बात है कि हमारे पास आंसर नहीं होते, लेकिन हम अपनी अथॉरिटी से, अथॉरिटी ऑफ द पेरेंट या अथॉरिटी ऑफ द रिलीजन से हम बच्चे को चुप करा देते हैं कि नहीं ये यही करना है, बस आप इसको पूछो मत। सो ये जो तरीका है कि आप चुप करा देना और उसके बाद उसको कोई जवाब नहीं देना, तो उससे फिर उसमें एक आदत डेवलप हो जाती है कि वो क्वेश्चन ही नहीं पूछता ना। ये हम अपनी क्लासरूम्स में भी देखते हैं कि बच्चे जब इस तरह से मान लेते हैं उस चीज को, तो फिर वो हर चीज को ही मान लेते हैं, फिर वो किसी में भी क्वेश्चन पूछने की उनकी आदत ही खत्म हो जाती है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इसमें जो लिखा हुआ है कि जो रिलीजन का पूरा एक डिस्कोर्स है इसके अंदर, हिंदुइज्म का, ब्राह्मणों का और एक यूनिवर्सल रिलीजन का, कि एक्चुअली रिलीजन तो ह्यूमनिज्म का है, सबसे बड़ा रिलीजन है वो ह्यूमनिज्म का है, तो उसकी तरफ हम किस तरह से जा सकते हैं, इसका इसके अंदर बहुत ही अच्छा चर्चा है। और एक एक जो डायलॉग है या एक एक जो डिस्कशन है, एक तरह से आई थिंक आप लोगों ने प्राइड एंड प्रिजुडिस जो नॉवल है वो भी अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उसमें भी बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस होती थी और डिस्कशन के थ्रू बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो उसी तरह से इसमें बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिसमें कि ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं ये बैठकर आपस में डिबेट्स करते हैं। दीज आर डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जो अच्छी चीज इसमें है कि वुमन भी पूरी तरह से इसमें डिबेट कर रही है, वो कोई टेकर नहीं है या पैसिवली नहीं बैठी हुई है वो वहां पे। शी इज आर्ग्यूइंग इक्वली इक्वल टू द मेल काउंटर पार्ट्स। तो ये एक इसके अंदर अच्छी चीज दिखाई गई है। और जो क्योंकि वो ब्राह्मण बताई गई हैं जो लड़कियां हैं, तो इसलिए वो उसमें उनमें कोई शाइनेस नहीं है या कोई हेसिटेशन नहीं है, एंड दे आर वेरी मच एनलाइटेंड पर्सन्स। ये इसके अंदर एक दिखाया गया है। तो ये बहुत मेरे ख्याल में आई थिंक यस प्लीज। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जो डिबेट का कल्चर है, वो जो संस्कृति है बातचीत की, वाद विवाद की, वार्ता की, वो संस्कृति का जो लोप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो बहुत चिंताजनक जो सिचुएशन है वो हो गई है। और वो यदि हम दोबारा प्रतिष्ठित कर सकें तो मुझे लगता है कि इस तरह के फोरम का जो अल्टीमेटली पर्पस है वो वही होगा। हमारे कोई साथी और कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज? जयंती मैम, प्लीज प्लीज। यस प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मुझे लगता है कि मेरी आवाज पहुंच। जी सर, ठीक है, बिल्कुल आवाज ठीक है आपकी। ठीक। यस मैम, अपना बड़ा नॉवल जो बड़ा है, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का कोई से जो आप यंगर जनरेशन को देना चाहते हो बेस्ड ऑन दिस नॉवल? कोई मैसेज? मैम, फॉर यस मैम, any message you want to extend younger generation based on this Yeah, long this novel? right. I think हाँ जी, am I audible properly? Yes, you are audible. Yes. So मैं राजीव जी ये बोलना चाहूंगी, जो मैंने लास्ट में टेक होम में भी कहा, अगेन आई वुड से दैट द आइडेंटिटीज दैट आर देयर, जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि देयर आर सो मेनी आइडेंटिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड, जैसे वी आर अगर आप मतलब वी आर डॉटर्स एंड सन्स, राइट, वी आर हस्बैंड वाइफ्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, वी आर पंजाबीज, बंगालीज एंड मराठीज, राइट, वी आर इंडियंस और वी आर एम्प्लॉयज। कई कई तरह की हमारी आइडेंटिटीज हैं। ये सारी आइडेंटिटीज, मान लीजिए आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊं जहां पे कि कोई मार्कर ही नहीं है आइडेंटिटी का। जब आइडेंटिटी होती है तो उसको देने वाला भी कोई ना कोई होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ सन, देन you have parents who have, that is why you are a son. If you are a husband or a wife, then there is a giver of that identity. If you are a brother or a sister, then there is a giver of that identity. और इसी तरह से हर जो भी आइडेंटिटी हमारी है, उन सारों का कोई ना कोई गिवर है। मैं अगर ये कहूँ कि is there some identity which nobody else has given to you? आज मैं अगर आपको एक ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां कोई मार्कर नहीं है, even no marker of gender, of country, of species, तो क्या वहां पे भी कोई चीज रहेगी हमारी? क्या कुछ बचा हुआ रहेगा अगर कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं रही उसके बावजूद भी? सो दैट थिंग, व्हाट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज कॉल्ड, उसका अलग अलग नाम दिया है लोगों ने, लेकिन जैसे हमारे हिंदू उसमें या फिलोसफी में अगर आप जाते हैं तो उसका नाम है आत्मन, राइट? इट इज द सेल्फ,
अगर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में आप कहो तो वो सेल्फ है। एंड व्हाट इज दैट सेल्फ? वो जो सेल्फ है दैट इज द एक्चुअल थिंग, दैट इज द कोर। इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। वो आपका अपना बिहेवियर है, आपका कंडक्ट है, द वे यू टेक डिसीजंस हैं, आपके हैबिट्स हैं, दैट इज व्हाट द सेल्फ कंसिस्ट ऑफ। और उसके अंदर वो हमारे अपने कंट्रोल में है कि हमने अपने सेल्फ को कैसे बनाना है। आई थिंक वो जो बाकी सब आइडेंटिटीज हैं, ये समझना जरूरी है कि ये हमें दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। और जो आइडेंटिटी मेरी अपनी है वो मेरा सेल्फ है, और वो मेरे सेल्फ कंट्रोल में है। हेलो, आपकी आवाज चली गई है मैम। तो या तो आप उसको सेल्फ स्टार्ट हो जाए, और या फिर आप स्टार्ट हो जाए। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। सो बेसिकली जो आप कह रही थी मैम कि पहले भी जो टैगोर के रेफरेंस में या इस नॉवल के रेफरेंस में जो बात कही आपने कि जो एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज हैं, इवन टैगोर का जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है नेशन और ह्यूमन बीइंग के बीच में, उन्होंने उनका जो बहुत पॉपुलर एसे है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार कंपलसरीली बोला होता है जब नेशनलिज्म और एजुकेशन के टॉपिक्स पे हम बात करते थे, तो उनको मैंने एसेंशियल रीडिंग में वो डाला हुआ था वेयर ही यूज्ड टू से कि भाई यदि नेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म में मुझे एक चीज चुननी होगी तो मैं ह्यूमनिज्म चुनूंगा, क्योंकि जो आप कोर की बात कह रही हैं वो ह्यूमनिज्म है, और जो नेशन, जो हमारा जेंडर, जो बाकी कास्ट, रिलीजन, रीजन और बाकी जो आइडेंटिटीज हैं वो एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज हैं, वो फ्लफ हैं। ये जो मैसेज है मुझे लगता है कि बहुत ही क्रूशियल और फंडामेंटल मैसेज है इस बुक का, और जो टैगोर के अंदर की भी कॉन्फ्लिक्ट को उसमें बड़े अच्छे तरीके से झलकाया गया है इस नॉवल में। और कोई कुछ कहना चाहते हो? किन्हीं और साथी की कोई प्रतिक्रिया, कोई स्टूडेंट कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, हमारे और कोई साथी कुछ कहना चाहते हो? हमारे पास 3 मिनट का वक्त है, लेट्स यूटिलाइज इट टू द मोस्ट। आपके लिए और कोई टेक होम मैसेज आपको लगता है, आपको कोई एक नई चीज जो आपने आज पता चली जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे, तो जयंती मैम के लिए भी और ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए भी हमारे लिए जानना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा व्यक्ति क्या उसमें से लेके जा रहा है। एनीवन? किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा हो? शेर सिंह कह रहे हैं कि सेल्फ के बारे में जाना, ये आइडिया कि कोर जो है वो सेल्फ है और बाकी चीजें एस्क्राइब्ड हैं, बाकी चीजें फोनी हैं, बाकी चीजें इथीरियल नहीं है, एफिमेरल हैं, ये जो मैसेज है वो शेर सिंह कह रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहें? नहीं तो डॉक्टर राजीव कौशल को दीजिए वोट ऑफ थैंक्स, ही विल टेक ओवर। श्योर श्योर। He will take 3 minutes. Sir, I do want to say something. हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। Yeah, my name is Monica. जी I see my name is not there on the screen, so I wanted to give my contribution. श्योर। It was very nice to be a part of this session today, and I know Dr. Gunmala for a long time. It's because of her I'm a part of this session. I do want to say that हिंदी में बात करती हूँ कि हिंदी में बात कर रहे हैं सब, तो जो कोर की हमने बात की है, कोर को जानने के साथ ये बहुत जरूरी है कि कोर को किस तरह से इम्प्लाई किया जाए, बिकॉज वो एक एग्जैक्ट चीज है जो कि आपको जिंदगी में आगे ले जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोर को पहले तो इम्प्लाई करना ही सिखाया नहीं जाता, और उसके बाद कोर को जाना नहीं जाता सबसे पहले। ये बहुत बड़ा रीजन है हम इस उम्र में बैठ के आज हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी उम्र के लोग हमारे इस डिस्कशन में हैं, पर फिर भी पहले तो कोर को कोई नहीं जानता,
और देन कोर को इम्प्लाई करना नहीं जानता, जिसकी वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत हद तक अभी भी मिसिंग है। जबकि हमारे साहित्य में ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी इसकी जगह है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीजें अभी नहीं है। आई एम हैप्पी कि इस तरह की मीटिंग्स और की जाएं ताकि जितना भी यूथ इसमें हिस्सा ले सके वो उससे बेनिफिट उसको हो सके। थैंक यू मोनिका जी। आपने जो मुद्दा उठाया है कि जानते नहीं है, वो तो एक इशू है। जानने की जरूरत भी नहीं समझते हैं, वो ज्यादा चिंता का विषय है। और जी हमारा जी, उद्देश्य यही जब जानते नहीं है तो जानने की जरूरत कैसे महसूस महसूस होगी? होगी। बिल्कुल वो बिल्कुल। पता ही नहीं है कि क्या है, तो क्या कैसे है? उसको हम ले सकते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सचिन। थैंक यू। Jayanti ma'am, any parting thought before I ask Dr. Rajiv to propose vote of thanks? Any parting आई thought? वुड ऑल्सो मैं इस बात को भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि हम इस बात को समझे कि जो मैन मेड चीजें हैं, मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं, whether it is religion or the concept of marriage or concept of education, schools, colleges, all these things are man made, and therefore they can be modified, they can be deleted, they can be destroyed, and they can one day they can not be there also. सो हम ये ना समझें कि ये, जब हम रिलीजन को ये समझ लेते हैं कि ये इतनी बाइंडिंग है कि हम इसमें से निकल नहीं सकते, तो इस बात का ध्यान रहे कि सिर्फ बाइंडिंग वो चीजें होती हैं जो नेचुरल चीजें हैं, और उन नेचुरल चीजों के अलावा जो मैन मेड चीजें हैं वो कभी ऐसा समय था कि वो नहीं थी, और कभी ऐसा समय होगा कि वो नहीं रहेंगी, और ये बिल्कुल से मॉडिफाइएबल है, ट्रांसफॉर्मेबल है। ये बात हमारे को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। Thank you, ma'am. I would now request Dr. Rajiv Khosla to propose vote of thanks. Thank you very much, sir. Jayanti Datta ji, Madam Gurmala Suri, Shri Singh ji. This is for the first time that I am attending this event of such a legendary organization, and I have been bestowed with the responsibility to vote of thanks. On behalf of participants, I extend a hearty gratitude to Professor Jayanti Datta for releasing the longest book of Rabindranath Tagore in a story form and in a highly lucid manner. I personally feel that this, due to such a heroic figure of the stature of Rabindranath ji, not have been better than this, wherein his thoughts are understood and discussed. We remained highly fortunate to got to know about Guru, at the same time how it relates to the contemporary era in nationalism and brotherhood, particularly the difference between co-fluff. I want to extend my thanks to all the participants who I have got inspiration to read the book. That I thank Madam Dr. and Shri Sachinji even for hosting this event. Thank you very much. We now, sir, Thank you. set a closure mode. Thank you. I think I thank everyone on my behalf as well. And thank you for taking time out. Thank you very much, Jayanti ma'am. Thank you everyone. Thank you. Thank you, everyone, Thank you. for joining, and we can close. Thank you. Sure.